Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So, this is the last video of this whole series that we started 1 month ago. We have covered all the MCQs, and today all the case scenarios will be covered. The last two case scenarios are left, case scenario number 29 and 30, which we will cover today. So before we start with case scenario number 29, I would like to thank you all for giving such a wonderful response to these videos. I also really enjoyed making these videos for you all because you people shared so much love on the videos. So your likes, comments used to make my day. So I'm really overwhelmed for this wonderful response of yours. Also, I wanted to convey that I've always tried my best to avoid the mistakes, but in case I did, please let me know about them, because if there is a mistake and it comes to my notice, I will pin that mistake in the comment of that respective video, so that whosoever watches the video gets to know that okay, so this part contains any error or something. So I have tried my best कोई mistake ना हो, but still since I'm a human too, मेरे से कभी कभी mistakes हो जाती हैं, कभी कभी बोलते हुए गलती हो जाती है. I don't intend to commit a mistake, but कई बार बोलते बोलते हो जाता है गलती. So in case you find any of the mistakes, please bring that to my notice. तो मैं उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी. एक मुझसे मिस्टेक हो गई थी केस सिनेरियो नंबर 8 के अंदर, क्वेश्चन 8.2, जिसका आंसर जिसमें आंसर जो इंस्टीट्यूट ने दिया है वो बिल्कुल ठीक था. उसका लॉजिकल रीज़न मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करा हुआ है. आप प्लीज़ उसको चेक कर लेना. इन केस यू हैव ऑलरेडी सीन दैट वीडियो एंड यू डोंट नो कि कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो प्लीज़ उसको चेक कर लेना. सिर्फ वो वाला एक क्वेश्चन था जिसमें मेरा और इंस्टीट्यूट का आंसर मैच नहीं हो रहा था, एंड आई ऑल्सो अग्री विद द आंसर ऑफ द इंस्टीट्यूट बिकॉज दैट वॉज लॉजिकली करेक्ट, राइट. सो सिंस आई मिस दैट पॉइंट, सो वहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई. अदरवाइज सिर्फ MCQs में क्वेश्चन नंबर 22 और 49 ऐसे MCQs थे जहाँ पर मैं इंस्टीट्यूट के आंसर के साथ अग्री नहीं कर रही थी. अदरवाइज सारे के सारे आंसर्स मेरे और इंस्टीट्यूट के मैच हुए हैं. सो प्लीज़ चेक आउट दी वीडियोज़ अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. कोई भी क्लैरिफिकेशन है या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई डाउट आ सकता है, तो वो भी मैं कमेंट पिन कर देती हूँ इन दी रिस्पेक्टिव वीडियो. तो जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ एक बार ही ना कमेंट सेक्शन पे नज़र मार लेना. जो भी कमेंट पिन्ड हो उसको प्लीज़ एक बार देख लेना, ठीक है. सो या लेट्स स्टार्ट विद द केस सिनेरियो नंबर 29 फॉर टुडे. दिस इज़ द सेकेंड लास्ट केस सिनेरियो. सो कंग्रेचुलेशंस, वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ देम. बहुत बल्कि MCQs थे, बहुत सारे MCQs थे, बहुत सारे पेजेस थे, एंड वी हैव सक्सेसफुली completed it, or we are about to. Just 2 case scenarios are left. Okay, so let's begin with case scenario number 29 without wasting any further time. Case scenario number 29, AB and company chartered accountants having 4 partners, Mr. A, Mr. B, Mr. C, Mr. D respectively. Head office is situated at New Delhi with 2 branches offices at Mumbai and Kolkata. The firm was founded in the year 1983. Mr. A took after the internal audit assignments. Mr. B and C head income tax audits, consultancy, and GST audit and consultancy respectively. Mr. D specializes in the company audits and the bank audit. So, हर एक पार्टनर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स का हेड है. दे आर डीलिंग विद द रिस्पेक्टिव असाइनमेंट्स. Now, firm is impaneled with the Comptroller Auditor General of India (CAG), Reserve Bank of India, and Income Tax Department for conducting the special audits also. Very good. During the statutory audit of PQR Limited, a listed company और listed company का audit कर रहे थे for the financial year 1920. Following observations were noted by Mr. Z. Mr. Z is an articled assistant. So articled assistant was doing the statutory audit of a listed company, and he had some following observations which he wants to share. So the company's accounts have been prepared on Ind AS basis as specified by the Companies Act 2013. Okay, so it is an Ind AS compliant company. Second one is there was a major fire at the plant on 3rd of April 2020 which destroyed the stock worth rupees 40 lakhs, approximately equal to 35% of the total stock in hand. Okay, so there was a fire on 3rd of April, that is after the reporting date. There was fire, and due to which stocks of amount 40 lakhs was destroyed, and this represents 35% of the total stock in hand they have. Okay, so approximately equal to 35% of the total stock in hand. Now the company acquired 53% shares of subsidiary limited on 1st of March 2020. However, it sold all the shares on 15th of October 2020. So if we see here, they have acquired shares on which date? On 1st of March 2020. That is just before the end of reporting period 1 month ago. Now they have sold the shares on 15th of October 2020. What does this mean? This means there was a temporary investment in the subsidiary. They acquired control for a very short period, for a temporary period. This means that
अगर आपको ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर याद है, इन दैट चैप्टर वी हैड स्टडीड कि अगर कोई ऐसा टेम्प्रेरी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देयर इज़ अ चॉइस, अगर वो कंसोलिडेशन नहीं भी करना चाहते तो ऐसा कर सकते हैं, देयर इज़ एन एग्जेम्पशन ओवर देयर. बट इफ़ यू रिमेंबर वहाँ पर एक और चीज़ मेंशन थी कि अगर कोई भी इंड एस कंप्लाइंट कंपनी होती है, दैट इज़ इंड एस 110 डज नॉट प्रोवाइड एनी सच एक्सेप्शन कि आप इस केस में सिंस यू हैव एक्वायर्ड द कंट्रोल फॉर अ टेम्प्रेरी टेन्योर या टेम्प्रेरी पर्पस के लिए, टेम्प्रेरी टाइम के लिए, तो इस केस में यू डू नॉट हैव टू कंसोलिडेट. ऐसा नहीं है. इंड एस 110 के हिसाब से जिस दिन आपने कंट्रोल एक्वायर कर लिया आपको कंसोलिडेट करना पड़ेगा. ठीक है. सो इस केस में क्या ये बच जाएंगे कंसोलिडेशन से? नो, दे विल हैव टू कंसोलिडेट. ओके. The company is having 1 crore equity shares at the rate ₹10 as its paid up share capital. तो paid up share capital कितनी हो गई? 10 crores. During the year, company declared a dividend of ₹1 per share out of the current year profits. Okay. So यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी ऑडिट के चैप्टर में से हमसे शायद कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछ सकते हैं, ऐसा लग रहा है अभी तक. It is brought to the notice that dividend to 4 shareholders holding 10,000 shares each has not been paid. Okay, dividend has not been paid to 4 shareholders within a period of 30 days of declaration of the dividends. We all know कि जैसे dividend declare होता है within 30 days it is required to be paid because it becomes a liability of the company. But if it's not paid then it is an offense. लेकिन वहाँ पे कुछ exceptions दी हुई थी कि in cases के अंदर it does not fall into ऑफेंस. तो कौन से एक्सेप्शंस थे? कुछ जो भी एक्सेप्शंस थे ना वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. लेट्स आइडेंटिफाई कि इसमें से कोई भी वो इस एक्सेप्शन के अंदर फॉल करता है या नहीं. तो इन पर्सन्स को उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया एंड द रीजंस वर गिवन एज फॉलोज. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिविडेंड टू मिस्टर के कुड नॉट बी पेड सिंस देयर वाज अ डिस्प्यूट अबाउट द राइट टू रिसीव द डिविडेंड. सो देयर वाज अ डिस्प्यूट, इस वजह से अगर डिविडेंड पे नहीं होता तो देयर इज नो ऑफेंस. Dividend to Mr. L was adjusted against the amount due from him to the company. So company has to take some amount from him. That is why they did not pay the dividend and they just adjusted the amount. This is also fine. There is no offense. Mr. M had given instructions to pay the dividend to a new bank account, but the amount remitted was received back due to incorrect details. This fact was informed by the company to him. So this is also one of the exceptions कि इस केस में भी offense नहीं माना जाता. तो हो सकता है यहाँ पर they might ask us a question from the dividends portion. Okay. Mr. Z was offered 0.5%. Who is Mr. Z? Mr. Z was the articled assistant who was doing the audit of PQR Limited, which is a listed company. He was offered 0.5% of the total profits of AB and company for performing very well in the audit of PQR Limited by Mr. D. Mr. D कौन था? Mr. D was one of the partners. One of the partners offered the article that okay, we are going to pay you 0.5% of the total profits of our firm by because you performed really well in the audit. Do you think this is allowed? No. As per professional ethics का chapter if you remember, उसके अंदर we have schedule 1 part 1 clause 2. You are not allowed to pay you are not allowed to share your profits with anyone except the persons who are mentioned in the regulation. But इसके अलावा you cannot share, right? So इधर ये they are professionally they have conducted the professional misconduct. They are guilty. Okay, let's see what MCQs they have asked. First MCQ is whether preparation of consolidated financial statements is required for financial year 1920 for PQR. So tell me, मैंने आपके साथ तभी डिस्कस किया था कि इंड एस 110 के अंदर there is no exception. So that is why consolidation has to be done. So no वाले options तो आपके ऑटोमेटिकली क्या हो गए? गलत हो गए. So तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? डी. क्लियर है? रीजनिंग भी देख लेते हैं. येस, इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज इंड एस 110 says so. Okay. Next question. Regarding the loss by fire, what is the correct course of action for the financial statements for 1920 as per Ind AS 10? Ind AS 10 के हिसाब से अगर हम देखें सिंस 31 मार्च 2020, यहाँ पर अगर आप केस देख लेते हैं 31 मार्च 2020 को, क्या आपको पता था कि फायर होने वाली है अप्रैल के अंदर, जिसकी वजह से यू हैव टू एडजस्ट दिस इवेंट, यू हैव टू टेक दिस अकाउंट, they take this event into account while preparing the financial statements? No, ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि इसकी जो कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं कर रही थी ऑन द बैलेंस शीट डेट. ओके, सो दैट इज़ वाई दिस इज नॉन एडजस्टिंग. एंड ऑल्सो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सिंस बहुत ज़्यादा मेजर अमाउंट है तो हमें इसका डिस्क्लोजर ज़रूर कर देना चाहिए इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वाई? बिकॉज डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड. नॉन एडजस्टिंग तो है बट उसका अमाउंट जो है वो काफ़ी मटीरियल है. सो दैट इज़ वाई 35% की आपके स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता था. तो दैट इज़ वाई दिस शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड और एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जस्ट as disclosure will do. Okay, so let's see which option is correct. Disclose the loss by fire in the notes. Do not adjust the financial statements. Correct. Write off the stock lost by fire totally on 31st March. No.
Make a provision for loss by fire on 31st of March 2020 and pass actual right of entry on 3rd. No. Neither adjust the loss nor disclose in the notes. So adjustment नहीं करनी थी but disclose तो करना था, तो that is why this option is also incorrect. The correct option in this case is A. Let's move on to the next question. Is Mr. D liable for professional misconduct by sharing the profits with Mr. Z? If yes, under which clause? तो मैंने आपको बताया था Schedule 1 Part 1 Clause 2 के अंदर he is guilty. तो यहाँ पर देखते हैं नो वाला तो आपका ऑप्शन गलत हो गया. येस के अंदर है क्लॉज 2, क्लॉज 2, क्लॉज 1, तो क्लॉज 1 भी आपका गलत हो गया. क्लॉज 2 के अंदर पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल, तो सेकंड शेड्यूल गलत हो गया. सो करेक्ट आंसर इज बी. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट केस सिनेरियो. ओके, इसमें इन्होंने अगर हम देखें तो डिविडेंड्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन कहानी बहुत सारी थी. डिविडेंड के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया. चलो कोई बात नहीं. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट केस सिनेरियो. केस सिनेरियो नंबर 30. काई P Limited, that is a private limited company involved in the wholesale business of vegetables across various cities of India. The company delivers all the orders using its own vehicles. So they use their own vehicles to deliver the vegetables across the various cities of India. However, during the peak season, the company would hire the vehicles to deliver its orders. Obviously बात है, peak season में ज़्यादा demand होती होगी, उनके vehicles sufficient नहीं पड़ते होंगे to deliver all the produce. Okay, now Messrs. PAZH and company chartered accountants were auditors of the company for past 2 years. For the year ended 31st March 2020, the statutory and tax audit was conducted by the firm, and following were the observations made. Okay, statutory audit और tax audit एक ही बंदा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. Observations में first observation क्या है? During the year, the company had made payment for 3 invoices. Okay, so there were 3 invoices, I1, I2 and I3. The amounts were as follow: 17,500, 18,750 and 11,250. किसको पे किया है? टू मेसर्स रेंट व्हीकल्स लिमिटेड फॉर द सर्विसेज ऑफ हायरिंग व्हीकल्स. सो दे हैव हायर्ड द व्हीकल्स एंड फॉर दैट दे आर पेइंग I1 and I2, that is 18,750 and 17,500 with respect to hiring of vehicles. Okay, and wages for the driver sent by them I3 above. तो wages का amount कितना है? 11,250. All the payments were settled by way of cash on 15th of March. Okay, so they have paid in cash. So important point यहाँ पर क्या हो गया? Payment has been done in cash. तो यहाँ पर आपको section number 40A3 याद आ रहा होगा. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपको रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट हो जाएगी. क्लॉज 21 के अंदर अगर आप कैश में पेमेंट करते हो टू अ पर्सन इन अ डे एंड दैट कैश पेमेंट अमाउंट इज एक्सीडिंग 10,000, देन यू हैव टू रिपोर्ट इट क्लॉज 21 के अंदर. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दे हैव पेड ऑन 15th of March I1 का अमाउंट है 17,500, बट 17,500 किसके रिस्पेक्ट में पे किया था? दे हैव पेड इट इन रिस्पेक्ट ऑफ हायरिंग ऑफ व्हीकल्स. लेकिन अगर आपको याद होगा हायरिंग ऑफ व्हीकल्स के केस में लिमिट 10,000 की नहीं होती, 35,000 की होती है. सो इस केस में सिंस दे हैव पेड 17,500 ऑन 15th of March सिंगल पर्सन सिंगल डे के अंदर, तो देयर इज़ नो इशू. ठीक है, 23rd of March को दे हैव पेड बोथ द बिल्स, सेकंड एंड थर्ड में से सेकंड वाला तो आपका हायरिंग ऑफ व्हीकल्स के लिए था एंड थर्ड वाला आपका वेजेस के लिए था, विच मीन्स हायरिंग ऑफ व्हीकल्स के लिए स्टिल देयर इज अ लिमिट ऑफ 35,000 एंड दे हैव पेड 18,750 इन अ डे, नो इशूज. थर्ड वाले इनवॉइस की बात करें तो दे हैव पेड 11,250 बट दैट वॉज फॉर दी वेजेस ऑफ अ ड्राइवर. तो लिमिट आपकी क्या लगेगी? लिमिट आपकी 10,000 लगेगी, विच मीन्स 23rd को जो उन्होंने ये वाला बिल पे किया है ना 11,250 का, देयर इज एन इशू विद दिस. दे शुड हैव नॉट पेड दिस बिल इन कैश. नाउ दिस इज डिसअलाउड. ओके, सो यहाँ पर आपकी टैक्स रिपोर्ट के अंदर, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रिपोर्टिंग जाएगी. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन नंबर 2. ऑन 31st of March द कंपनी हैड टेकन इंश्योरेंस वैल्यू इंश्योर्ड कितना था? 1 लाख रुपए का. ठीक है, किस दिन लिया है? 31st March को. किस चीज़ के लिए? फॉर इट्स न्यू गोडाउन एंड द प्रीमियम वॉज टू बी पेड ऑन द नेक्स्ट डे. ओके, तो प्रीमियम कब पे होगा? प्रीमियम पे होगा 1st of April को. पॉलिसी कब ली है उन्होंने? 31st of March को, लेकिन अभी तक प्रीमियम पे नहीं हुआ. ठीक है, हाउएवर ऑन द नाइट ऑफ 31st अ ह्यूज फायर एक्सीडेंट टुक प्लेस एंड द गुड्स वर्थ ₹1.5 lakhs वर लॉस्ट. अब इन्होंने प्रीमियम पे नहीं किया, 31st March को आग लग गई, जिस गोडाउन के लिए उन्होंने इंश्योरेंस लिया था उसी गोडाउन में आग लग गई. ठीक है, और 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया. द कंपनी इन्फॉर्म द इंश्योरेंस एजेंट अबाउट द इंसिडेंट एंड इंक्लूडेड द लॉस वैल्यू एज रिसीवेबल्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो एक बात बताओ, जब भी ऐसा होता है, आपको सेक्शन नंबर 64 VB याद होगा, इंश्योरेंस कंपनी ऑडिट के चैप्टर में पढ़ते हैं हम ये.
इंश्योरर जो है वो रिस्क अज्यूम नहीं करता जब तक उसको प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिल जाता या उसको सर्टेनिटी नहीं आ जाती कि उसको प्रीमियम का अमाउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें 31 मार्च को पॉलिसी तो करा ली बट पॉलिसी का प्रीमियम नहीं आया, तो इंश्योरर ने भी रिस्क अज्यूम नहीं किया। रिस्क अज्यूम नहीं किया तो कोई भी क्लेम आता है तो वो क्लेम का पेमेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर कंपनी का ये डिसीजन लेना कि उनको एज अ रिसीवेबल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस लॉस वैल्यू को इंक्लूड कर लेना चाहिए, क्या ये सही है? नहीं। पहली बात तो ये गलत होगी कि उनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, उन्होंने पूरा का पूरा लॉस वैल्यू को इंक्लूड कर लिया एज रिसीवेबल्स, जबकि वैल्यू इन शॉर्ट थी 1 लाख रुपए की और लॉस हुआ है 1.5 लाख रुपए का। तो यहाँ पर भी गलती है। तो पहली गलती तो ये रिसीवेबल्स में आना ही नहीं चाहिए था क्योंकि रिस्क अज्यूम अभी तक हुआ नहीं था। रिस्क अज्यूम नहीं हुआ था तो अभी आपको वैसे भी क्लेम का पेमेंट नहीं मिलने वाला, ठीक है। दूसरी बात, पूरा का पूरा लॉस वैल्यू इंक्लूड करना एज अ पार्ट ऑफ रिसीवेबल्स वो वैसे भी गलत था। इवन अगर 31 मार्च को आपका प्रीमियम का पेमेंट हो भी जाता ना तब भी आपको मैक्सिमम कितना 1 लाख का रिस्क अज्यूम किया जाता बाय द इंश्योरर, जिसकी वजह से क्लेम भी 1 लाख का ही मिलता। बट यहाँ उन्होंने 1.5 लाख का लॉस हुआ है तो 1.5 लाख का पूरा रिसीवेबल क्रिएट कर लिया, विच इज अगेन रॉन्ग, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, with respect to the expenditure made by the company, the following were to be disclosed in the tax audit report, but the management did not accept the decision of the auditor. Okay, so the auditor is saying that this needs to be disclosed, but the management is saying no, this does not need to be disclosed. Now let's see, the company had incurred 40,000 towards advertisement expenditure on a brochure pamphlet published by a private educational institution in Pune. तो इफ़ यू रिमेंबर क्लॉज 21 के अंदर ही हम पढ़ते हैं कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होता है ऑन अ ब्रोशर पैम्फलेट तो उस केस में रिपोर्टिंग होती है। बट वहाँ पर अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो वहाँ पर लिखा हुआ था बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, नॉट बाय अ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन पुणे। तो इसीलिए यहाँ पर ये गलत हो गया। ऑडिटर इज रॉन्ग दैट क्लॉज 21 के अंदर इसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। वाई? क्योंकि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी ने किया होता बेसिकली टुवर्ड्स द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और अ ब्रोशर पैम्फलेट पब्लिश्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी लिखा होता ना तो डिस्क्लोजर जाता, बट यहाँ इस केस में डिस्क्लोजर नहीं जाएगा। ओके, द कंपनी reimbursed 18,000 to its employees who had incurred the expenses on entrance fees paid to the club. ये बिल्कुल डिस्क्लोज होता है क्लॉज 21 के अंदर। The company had an idle land near to its godown. It had employed 5 farmers to cultivate rice and had made an income of rupees 13 lakhs by selling the output. Okay, the salary paid to the 5 employees and other costs amounting to 2 lakhs were debited to the profit and loss account of the company. So here the land was idle. तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि आपने क्या किया है? राइस कल्टिवेट किया है। एग्रीकल्चरल इनकम आपकी क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10, ठीक है। जिसका मतलब हो गया कि अगर इनकम एग्जेम्प्ट है तो सेक्शन 14A की वजह से आपको एक्सपेंडिचर भी अलाउ नहीं किया जाएगा। तो कोई भी ऐसी इनकम अगर होती है या कोई भी आपका जो एक्सपेंस होता है बेसिकली अगर आपको डिसअलाउ हो रहा होता है, इनएडमिसिबल होता है अंडर सेक्शन 14A, तो दैट हैज़ टू बी रिपोर्टेड अंडर क्लॉज 21। तो यहाँ पर क्या किया कंपनी ने? जो एक्सपेंडिचर है उसको डेबिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। तो डू यू थिंक दिस विल बी अलाउड? नो। सो दैट इज व्हाई दिस नीड्स टू बी रिपोर्टेड। Let's move on to the observation number 4. Observation 4 says the company was operating with same share capital which it had since inception, that is 95 lakhs. During the year, it had made a turnover of 158 lakhs and its borrowing stood at 58 lakhs. So यहाँ पर अगर हम देखें तो paid up share capital जो है वो है आपकी 95 lakhs. ओके, एंड ये जो बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो उससे पहले आपकी टर्नओवर दी हुई है तो टर्नओवर आपको दे रखी है 158 lakhs. ओके, नाउ दे आर सेइंग कि जो आपकी बोरोइंग्स है ना वो बैलेंस शीट डेट पर 58 lakhs की हैं एज ऑन 31 मार्च, विच वॉज आफ्टर सेटलिंग अ लोन ऑफ 43 lakhs टेकन फ्रॉम SBI on 24th March. So they had taken a loan and they have repaid the loan of 43 lakhs. ठीक है, the amount of 58 lakhs was the balance of the term loan taken in the earlier year and after repayment of the installments in the current year as and when due. So अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर अभी आपको बोरोइंग्स की बात कर लेते हैं। बोरोइंग्स आपकी 58 lakhs हैं ऑन 31st March. ओके, बस इतना बताया हुआ है। लेट्स सी क्या क्वेश्चन पूछा होगा, उसके बेसिस पर वी आर गोइंग टू डिसाइड। नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट the firm received the following assignments: offer to be appointed as the internal auditor of HH Limited, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाओ। offer to be appointed as the statutory auditor of HH Employees Provident Fund, तो अगर आपको पता होगा recent
गाइडलाइंस और रीसेंट डिसीजंस ऑफ द एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड, तो उसके अंदर मेंशन्ड है कि कोई भी इंटरनल ऑडिटर, कंपनी का जो इंटरनल ऑडिटर है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द ईपीएफ बन सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर दिस इज टोटली परमिसिबल, कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है। ऑफर टू बी अपॉइंटेड एज द इंटरनल ऑडिटर ऑफ वाईवाई लिमिटेड एंड साइमल्टेनियसली दे वर ऑल्सो अपॉइंटेड टू परफॉर्म द जीएसटी ऑडिटर फॉर द कंपनी। तो आपने एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड की डिसीजंस पढ़े होंगे, उसके अंदर इट इज मेंशन कि जो भी इंटरनल ऑडिटर है वो जीएसटी ऑडिटर नहीं बन सकता। सो दैट इज वाई दिस इज नॉट अलाउड टू एक्ट एज द फाइनेंशियल एडवाइजर टू मेसर्स एनबी म्यूचुअल फंड लिमिटेड। ओके, सो देयर इज अ म्यूचुअल फंड कंपनी फॉर अ प्रोफेशनल फी ऑफ ₹1 lakh per annum. So this is also not allowed as per the recent decisions of ethical standards board. So yeah, this is also not allowed. Now, the audit firm feared that it would attract professional misconduct and regulatory issues if it takes up all the assignments and hence gave up all the offers. So ऑडिटर्स को लगा, भैया ऑडिटर्स को या फर्म के मेंबर्स को लगा कि यहाँ पर ना सब सारे के सारे कोई भी हम असाइनमेंट को एक्सेप्ट करेंगे तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा, तो छोड़ो, कुछ भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और डर के मारे उन्होंने सारे छोड़ दिए। बट आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या वो फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट को एक्सेप्ट कर सकते थे या नहीं? येस, दे कुड हैव एक्सेप्टेड फर्स्ट एंड सेकंड असाइनमेंट, बट बिकॉज ऑफ द फियर कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अट्रैक्ट ना हो जाए, उन्होंने कोई भी असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द अबव मेंशन्ड फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यूज। लेट्स रीड फर्स्ट एमसीक्यू. With regards to tax audit of CAI P Limited, that is CAI Private Limited, what should the auditor do with respect to observation 1? तो observation 1 पर एक बार वापस चलते हैं। observation 1 थी आपकी 40A3 के हिसाब से। तो इसमें हमने सिंपली देखा था कि आपको सारे के सारे अमाउंट्स अलाउ हो जाएंगे, ओनली देयर इज अ इशू कि आपको 11,250 का जो अमाउंट है ये आपको अलाउ नहीं होगा एंड दिस नीड्स टू बी रिपोर्टेड बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं उन्होंने क्वेश्चन क्या है। ओके, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आप क्या करोगे इस रिस्पेक्ट में। सो ही नीड्स टू रिपोर्ट एनीथिंग एज कैश पेमेंट्स एज वेल विद इन द लिमिट्स ऑफ इनकम। तो कह रहे कुछ रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, गड़बड़ हो गया। डिसअलाउ 17,500 नो, डिसअलाउ 18,750 एंड 11,250 नो। इधर तो आपको पास 35,000 की लिमिट थी ना। डिसअलाउ 11,250 एंड गिव द डिटेल्स ऑफ द सेम अंडर क्लॉज 21 ऑफ द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज डी. Next question is regarding the observation number 2, what should be the right value to be recognized by the company as receivables from the insurance company? तो इसका मैंने आपको बताया था, सिंस रिस्क अज्यूम नहीं किया होगा इंश्योरर ने, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इस केस में आप कुछ भी नहीं दिखा सकते थे एज अ रिसीवेबल। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज गोइंग टू बी ए. ओके, नेक्स्ट अगर इस केस में बताओ, अगर इस केस में 31 मार्च तक प्रीमियम पे हो जाता तो क्या होता? उस केस में आपकी 1 लाख की वैल्यू तब दिखा सकते थे आप एज रिसीवेबल्स, बट नॉट 1.5 तो वैसे भी नहीं दिखा सकते थे। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में तो 0 आएगा क्योंकि रिस्क अज्यूम नहीं हुआ, प्रीमियम पे नहीं हुआ था। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन नंबर 4 कैन यू सजेस्ट वेदर कारो इज एप्लीकेबल टू द कंपनी और नॉट, व्हाट इज द रीजन? सो यहाँ पर आप जाते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर 4। ऑब्जर्वेशन 4 में बताया था कि पेड अप शेयर कैपिटल आपकी कितनी है, 95 लाख की आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है। 95 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल है, टर्नओवर है 158 लाख की और बोरोइंग्स है 58 लाख की एज ऑन 31 मार्च। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि 43 लाख का आप ऑलरेडी लोन पे कर चुके हो एंड दिस 58 लाख इज आफ्टर डिडक्टिंग 43 लाख। ओके, सो अगर आपको कारो की एप्लीकेबिलिटी पता है तो कारो की एप्लीकेबिलिटी प्राइवेट, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी का केस था तो आपको सोचना पड़ेगा वो लिमिट्स के बारे में। 3 लिमिट्स, पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 1 करोड़ होनी चाहिए, या फिर बोरोइंग्स मोर देन 1 करोड़, या फिर टर्नओवर मोर देन 10 करोड़। तो यहाँ पर पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी लिमिट्स एक्सीड नहीं कर रही हैं, तो खत्म। बात आती है बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग्स के केस में आपको पता होगा आपको बोरोइंग्स देखनी होती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर। किसी भी दिन अगर आपका बोरोइंग्स का जो अमाउंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का हो जाता है, इन दैट केस यू हैव टू रिपोर्ट, कारो की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 58 लाख, और जब आपने 43 पे नहीं किया था तो 43 भी आपकी लाइबिलिटी थी, तो 58 प्लस 43 5C, तो यहाँ पर मेरा कितना आ रहा है 101 लाख विच इज एक्सीडिंग 1 करोड़, विच मीन्स कि आपके ऊपर कारो की एप्लीकेबिलिटी आ रही है। राइट, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज द रीजन, या पहले पूछा है वेदर कारो इज एप्लीकेबल और नॉट, तो येस कारो इज एप्लीकेबल, नो वाला ऑप्शन काट दो। येस, सिंस पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एक्सीड्स, नो। टर्नओवर एक्सीड कर रही है, नो। सिंस द बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी एक्सीड्स द स्पेसिफाइड लिमिट्स, येस, बोरोइंग्स की वजह से कारो एप्लीकेबल हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इन दिस केस इज D. Let's move on to the next question. Which among the points under observation 3 should be reported by the auditor in the tax audit report? तो observation 3 पर चलते हैं। Oops, sorry. Observation 3.
ओके, सो दिस वाज ऑब्जर्वेशन 3 जहाँ क्लॉज 21 की बात हो रही थी। तो फर्स्ट वाला पॉइंट आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। रीज़न सिंपल था, क्योंकि यहाँ पर बाय पॉलिटिकल पार्टी नहीं लिखा हुआ है, बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, विच इज़ नॉट करेक्ट। सेकेंड वन हमारा रिपोर्ट होगा, थर्ड वाला भी हमारा रिपोर्ट होगा, सिंपली क्योंकि आपका ये 14A में इनएडमिसिबल है, ठीक है। तो सेकेंड एंड थर्ड शुड बी रिपोर्टेड। लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, correct answer in this case is B. Correct. Let's move on to the next question. Does the act of being appointed as the financial advisors to Messrs NB Mutual Fund Limited attract professional misconduct? Yes. ऐसे तो उन्होंने देखो कोई भी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन हाँ अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होता तो यहाँ पर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाता। तो नो वाले ऑप्शंस आपके गलत हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या है? यस। एज पर द डिसीजंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, द फर्म कैन नॉट एक्ट एज द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ अ म्यूचुअल फंड कंपनी एंड रिसीव द फीस फ्रॉम देम, राइट। आपको प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर अगर आता है तो इजीली आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा रीसेंट डिसीजंस ऑफ द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है? बी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग द असाइनमेंट्स 1, 2, 3, तो 3 असाइनमेंट्स बता रहे हैं। गिवन इन द सिनेरियो विच PAZH कंपनी रिसीव्ड। ओके, सो दे आर टॉकिंग अबाउट द असाइनमेंट्स दैट दे रिसीव्ड। 4 असाइनमेंट मिले थे, जिसमें से फर्स्ट 3 की ये बात कर रहे हैं, फोर्थ वाला ऊपर कवर हो गया। अंडरटेकिंग विच वुड हैव लेड टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तो क्या कौन सा असाइनमेंट उनके लेने से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाता? तो ये हम ऑलरेडी उसको पढ़ते हुए आंसर कर चुके हैं। थर्ड वाला लेने में कोई इशू नहीं थी क्योंकि अलाउड है। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ले लेते तो गड़बड़ हो जाती, राइट। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड नहीं, सॉरी, फर्स्ट और सेकंड लेते तो कोई गड़बड़ नहीं होती, थर्ड वाला ले लेते तो गड़बड़ हो जाती। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था शायद। थर्ड वाला लेते तो गड़बड़ हो जाती, फर्स्ट एंड सेकंड लेते तो कोई भी गड़बड़ नहीं होती एज पर द रीसेंट डिसीजंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड। सो लेट्स सी ऑप्शन। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि कौन से वाले केस में वुड हैव लेड टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तो कौन से केस में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाता? थर्ड वाले असाइनमेंट को लेने में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाता। तो करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सी। आई होप यू हैव मार्क द क्वेश्चंस विच यू अटेम्प्टेड इनकरेक्टली फॉर द फर्स्ट टाइम। सारे के सारे MCQs में, सारे के सारे केस सिनेरियोज में, तो सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करना है अच्छे से एंड यू आर गुड टू गो। आई होप यू एंजॉयड कवरिंग ऑल दी MCQs एंड केस सिनेरियोज विद मी। इन केस यू डिड, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने फीडबैक्स सजेशंस शेयर करने हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करना है। दैट्स ऑल आई आस्क। एंड हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।